spirit among the students, budding entrepreneurs. Over the years, the ECEL has organized various pan-India competitions and holds insightful workshops held by the prominent speakers to keep these aspiring minds grow and cultivate the spirit of job creation. We believe in extending the collective effort, a network of support and a platform for continuous development. I would now like to introduce today's session to embark on an entrepreneurial journey. Nirman Yatra engaged in idea pitching sessions, receive feedback from a panel of entrepreneurs and network with student innovators. Nirman Yatra is organized by NMIMS Super Center of Excellence for Innovation of Entrepreneurship. They have come around to discover the dynamics of Indore startup scene through interactions with startup founders, student startup advisors and exploration of a local start incubator. I welcome all the panelists over here. Mr. Himanshu Chaturvedi, the founder of and director of Motion Series. Ms. Komal, CEO of Motion Series. Ms. Suji Manocha, founder of Ecobay. Mr. Ankit Jain, founder of Deep Roots. Business advisor, mentor and management consultant. Moderator, Mr. Prashant Kulkarni, founder of Chatterpatter and Tasty Alphabets. And Mr. Piyush Sharma. I would like to invite its moderator, Prashant Kulkarni, to take over the speech. So hi all, I'm Prashant Kulkarni and today's topic is about your first love. And when we say first love, we are talking about startups. So how startups? So when we were discussing about this concept also, and since this is a love month that we are into, so we thought, why don't we connect love month to the startup ecosystem and how eventually the first love, So लाइफ की जर्नी, स्टार्टअप की जर्नी और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्यार की जर्नी बहुत सारे eventually to get started, फिर you marry that idea and eventually that's how the journey goes. तो जब हमने आइडिया डिस्कस करा तो हमने सोचा कि ऐसा मिक्स पैनल हम बिठाएं जिसके अंदर सारे अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों को हम लेके आए जो अपने अपने पहले प्यार के बारे में, जो उनका पहला स्टार्टअप रहा होगा, पहला आइडिया रहा होगा. कल के सेशन में जैसे एक निकला भी था कि how to have different ideas, probably how to select the idea that is of most important or which intimidates the pursuer of that particular idea. So I open this discussion to everyone. So would love to start. Would love to know about your first love for the cosmetic industry that you've jumped into and how eventually you got started. Hello all, good morning. My name is Sheetal Badole. I'm a cosmetic manufacturer by profession and I have two brands, Herbal Beauty and Urban Chic. These are my brands and we do contract manufacturing as well for several brands. I have other business as well. I am into dance costume also. We export dance costume to US and Canada. Entrepreneurship मेरे लिए accidentally हुई, startup हुई. I used to work in US and I was getting really good salary over there. I was making more than like $200,000 a year. And then my husband decided to move back to India. और इंदौर जैसी जगह में to make $200,000 a year is not at all easy thing. So I thought कि पैसा तो कमाना है, husband से मांग नहीं सकते because independent है. तो I thought क्या करें and फिर एक entrepreneurship का कीड़ा आया मेरे दिमाग में जो बचपन से था. मैं देखती थी कई सारे cosmetic brands को and I have worked with leading like cosmetic and pharma companies in US also. So I had that exposure. तो यहाँ पर मैंने एक घर पर ही छोटा सा एक अपना वो बनाया लैब कुछ 20 by 20 के एक रूम में and then 50,000 rupees के इन्वेस्टमेंट से मैंने ये फॉर्मुलेशन स्टार्ट किया. I have started formulating cosmetic products and within 2 years I have formulated more than you say 200 products. And फिर एक साल मुझे लगा उसकी स्टेबिलिटी चेक करने पर. हमने कई सारे लोगों पर उसको ट्रायल्स लिया
and then I got that Ayush certification and I have started my own company. तो initially तो ऐसा आप बहुत fascinate होते हो if you look at the any entrepreneur कि यार you see that money, you see car, you see glory, everything, but it's not at all easy, and especially bootstrapping your business. आप अपने खुद के पैसे से जब स्टार्ट करते हैं तो it's very very difficult for you. But then I decided कि नहीं, मुझे ऐसे ही मैनेज करना है, ऐसे ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है. तो मुझे लगा अगर मैं रिटेल बिजनेस में जाऊंगी तो उसमें मार्केटिंग के लिए आपको बहुत पैसा लगता है. यू नीड लॉट ऑफ मनी. मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट, उसके लिए यू डोंट नीड मच फंड्स, बट देन मार्केटिंग योर प्रोडक्ट इज अ बिग टास्क. सो आई थॉट कि मैं कैसे रिसोर्सफुलनेस से अपने इस प्रोडक्ट को सेल करूं और एक ब्रांड नेम इसको बनाऊं. तो जो मैंने प्रोडक्ट फॉर्मुलेट किए थे वो आई न्यू कि ये प्रोफेशनल मेकअप रेंज में काफ़ी अच्छा जाएगा, बिकॉज इंडिया में उस समय 2016-17 में इतनी ज़्यादा मेकअप को लेकर के अवेयरनेस नहीं थी. पीपल यूज टू गो बाय ब्रांड्स कि दे यूज टू बाय मैक, दे यूज टू बाय लैक्मे, दे यूज टू बाय अदर प्रोडक्ट्स, बिकॉज हमारे यहाँ एक कस्टमर अवेयरनेस नहीं है. दे डोंट सी द इंग्रेडिएंट्स बिहाइंड द पैकेज. तो उनको ये है हमारी जनरेशन को, जनरेशन Z इज बिकमिंग वेरी वेरी अवेयर अबाउट द इंग्रेडिएंट्स एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग. तो आई हैव अप्रोच्ड ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन हियर इन इंदौर, and I knew that there are several, like so many salon owners here. So I'm like, I need to show my product to the beauty parlor or salon owner so that they can sell it to others or they can use it. तो वहाँ पर मैंने presentation देना शुरू किया and वहाँ से that product become very very popular because इस segment में बहुत कम brands थे professional makeup range में. तो and this my makeup was like organic, 100% natural, and it was makeup. Usually makeup chemical based होते हैं. तो it became very very popular. Then मैंने beauty expos में जाना स्टार्ट किया, जो कि all over India में होता है. वहाँ I used to showcase my products and हमने एक distribution channel बनाई for गुजरात, राजस्थान, यही हिंदी वाला जो बेल्ट है इसमें. तो ब्यूटी आपका पहला प्यार बना कैसे? We'd love to know that story also. Like I used to see Shehnaz Hussain a lot when I was a kid. तो मुझे बड़ा फैसिनेशन था कि I need to formulate something. मैं किसी की लाइफ में चेंज लेकर के आऊँ. The product should be really good, eco-friendly, natural also, and one should look good also. तो ये जो एक कॉन्सेप्ट था ये लेकर के करना था. एंड मेरा जो बैकग्राउंड है दैट इज इनटू केमिस्ट्री. आई डिड माय मास्टर्स इन अप्लाइड केमिस्ट्री. तो वो जो कीड़ा था केमिकल्स का और ये सब करने का, फॉर्मुलेशन का, वो कीड़ा ने मुझे काटा. एंड देन आई स्टार्टेड. आपको कब काटा उस कीड़े ने? और उस प्यार के बारे में जब आपको लगा कि एनिमेशन ही आपका प्यार बन सकता है और उसी प्यार से शादी करनी चाहिए? नहीं, मैंने तो मेरे प्यार से शादी की. गुड मॉर्निंग ऑल. तो कल हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन भी हुआ. तो एनिमेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी मैं मेरे प्यार को बोलूंगा कि हमारे प्यार मोशन जिलिटी के बारे में वो ज़्यादा डिटेल में बताएं. तो एनिमेशन का कीड़ा मुझे सबसे पहले 6th क्लास में ही काट गया था, क्योंकि मेरा इंडिया के अकॉर्डिंग पढ़ाई में मन नहीं लगता था. मुझे साइंस, मैथ्स और इंग्लिश पसंद नहीं थे. और इंडिया में अगर आपको 3 सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो मतलब आप पढ़ने में हो ही नहीं. तो मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा अपसेट रहते थे कि यार ये पढ़ना ही नहीं चाहता है. तो मैंने कुछ प्लान करूँ यार, क्या करूँ कि पढ़ाई से कैसे भी छुटकारा मिल जाए. तो अभी मैं 2-3 साल पहले उनसे मिला, जिनके कारण मुझे पहला प्यार मिला. तो वो एनिमेशन एक्सप्रेस मैगजीन मुझे एक बार समोसे वाली के शॉप पे मिली. वो उससे फाड़ के समोसे रख के दे रहा था और मैंने मैगजीन देखी एनिमेशन एक्सप्रेस. तो उसमें लास्ट में किसी ने, कॉलेज वाले या किसी इंस्टीट्यूट वाले, में नाम नहीं लूंगा, उन्होंने वो डाला हुआ था कि यार उस समय पर ये पेपर में भी ऐड बहुत आता था कि 10th फेल 12th फेल, अगर इस कोर्स को ज्वाइन करें. तो मैंने कहा मैं तो फेल भी नहीं हुआ हूँ, अब तो पढ़ ही रहा हूँ, ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, इस फील्ड में घुस जाओ. अच्छा,
मैं कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हूँ, मैं स्टोरी बोर्डिंग नहीं कर पाता, मैं सीधी लाइन नहीं खींच पाता, मैं ग्राफिक नहीं बना पाता, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की नंबर 1 कंपनी चला रहा हूँ। और एनिमेशन में भी मुझे प्रिंसिपल आते पर मुझे एनिमेशन करना नहीं आता, तो कॉन्सेप्ट अच्छा बना लेता हूँ। तो मेरा पहला प्यार मुझे तभी मिल गया था, रीजन अलग था कि मुझे पढ़ना नहीं था, बट जब मैंने कार्टून्स देखना शुरू करे तो उसकी बैकग्राउंड की प्रोसेस जानने में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे लगता था कि कार्टून शायद बाहर निकल के आ जाएंगे, ये कहाँ बन रहा है, ये रियल वर्ल्ड है। तो वो जानने की उत्सुकता ही मुझे ना उस चीज में डीपली ले जाने लगी। लोग अक्सर टीवी सीरियल्स देखा करते थे, मैं एडवर्टाइजमेंट देखा करता था कि 1 मिनट में कैसे इसको कन्वे कर रहे हैं। और बिजनेस से मुझे प्यार कैसे हुआ ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जब मैं 7-8 साल का था तो मैंने पहला बिजनेस तब शुरू करा, और मैं बहुत शैतान बच्चा था, तो अक्सर पापा से मार खाता था। अभी के जनरेशन के लोग थोड़ा पापा से मार नहीं खाते, हमारे टाइम पर हो जाते थे, अच्छी कुटाई हो जाती थी ज्यादा मस्ती करने पे, तो मैं अक्सर मार खाया करता था। उस इंसिडेंट में मैंने मार नहीं खाई। तो ऐसा हुआ था कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, और हेडलाइन ही पढ़ पाता था, डिटेल में नहीं पढ़ पाता था। उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि शेयर मार्केट में निवेश करें, अच्छी संभावनाएं हैं। तो मैंने हेडलाइन पढ़ ली, अगले दिन मैंने पढ़ा वापस से वो बिजनेस जो वाला जो आर्टिकल आता था दैनिक जागरण में कि शेयर मार्केट में निवेशकों के पैसे डूबे। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स को बोला, वो कल वाला पेपर दिखा के कि अगर आप लोग शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे कल डबल। बोले करें कैसे? मैंने कहा आप अपने 1-1 रुपए की पॉकेट मनी मेरे पास 10 रुपए जमा करिए और कल 20 रुपए ले जाइए। वो 1-1 रुपए मुझे आकर देगा, और मैंने उसके बढ़िया चाट पकौड़ी खाए, 1-2 खिलौने विलौने ले लिए, 10 रुपए पूरे खर्चा कर लिए। नेक्स्ट डे वो मांगने आया, मैंने दूसरा वाला पेपर दिखा दिया कि निवेशकों के पैसे डूब गए। अब वो लोग अपने अपने घर पहुंचे, उन्होंने अपने पापा से दोबारा पैसे मांगे कि आप पापा पॉकेट मनी दो। तो बोले यार कल तो तुम्हें दिया ही था 1 रुपए, तो 50 पैसे से काम हो जाता था। तो मैंने उनसे जिद करी थी कि 1 रुपए ही लेके आना। तो उन्होंने बोला कि यार पापा तो शेयर मार्केट में डूब गए। अब बोले उस टाइम पर मम्मी पापा भी शेयर मार्केट में निवेश नहीं करते। बोले तुमने कहा शेयर मार्केट में निवेश कर दिया? किसी की 5 साल की उम्र, किसी की 6 साल की उम्र। तो बोले कहाँ पर शेयर मार्केट में निवेश करते हो? तो उन्होंने बताया कि हमको एक ब्रोकर मिला है जिसका नाम हिमांशु है, हमारे पैसे इन्वेस्ट करवा दिए। तो वो सारे के सारे इकट्ठे होकर कि यार इसकी बहुत शैतानियां बढ़ रही, मेरे घर आए। तो मुझे जब भी वो घर आते तो मुझे पहले से पता रहता था मेरे को मार पड़ने वाली है, तो मैं छिप जाता था। उस दिन भी मैंने छिपने की कोशिश करी, तो मेरे पापा ने मुझे आवाज मारी, और उस दिन पिटाई की जगह उन्होंने मुझे गोद में बैठाया और उन्होंने मुझे बोला कि तुमने जो बिजनेस की प्रोसेस करी, जो भी दिमाग लाई, वो तो ठीक है, बट सारे कस्टमरों को मार डालोगे सारा पैसा लेके तो वो रिटर्न नहीं आएंगे। तो बिजनेस में चाहिए कम से कम 2 लोगों के पैसे तो वापस करते, बाकियों के भले ही खा जाते। तो वहां से मुझे एनिमेशन नहीं, बिजनेस का कीड़ा लग गया और मुझे चीज समझ में आ गई। तो मुझे पहला कैरम खरीदना था, तो मैंने कैरम नहीं खरीदा, दुकान वाले से कैरम किराए पे लिया, कैरम कंपटीशन करवाया, और कंपटीशन में एक को जिताकर और सारे पैसे रख के कैरम खरीद लाया। ये सेम मैं कॉमिक्स में करता था, कॉमिक्स चलती थी हमारे टाइम पे, तो मैं कॉमिक्स ना किराए पर लाके खुद नहीं पढ़ता था। एक दिन के लिए 2 रुपए में मिलती थी, मैं 10 लोगों को देता था, और जब 20 रुपए देते थे 10 रुपए की 2 कॉमिक्स आती थी, 2 कॉमिक्स खरीद लाता था, और वो भी शाम को उसको 8 रुपए में वापस बेच देता था। तो मेरा पहला पैर बिजनेस तभी बन गया था, एनिमेशन नहीं। एनिमेशन तो फिर साइडलाइन चलता रहा, बाकी मोशन जीडीटी हमारा पहला पैर कैसे बना, और ये तो वो कोमल आपको थोड़ा सा बेटर बताएंगी। जैसा हिमांशु ने मेंशन किया कि मैथ, साइंस और इंग्लिश में वीक थे, बट यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट था। आई वॉज लाइक मेरा वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था, प्लस मेरा क्रिएटिविटी में शुरू से ही इंटरेस्ट रहा था। सो इस चीज़ में कभी भी ये नहीं था कि यार एग्जैक्टली करना क्या है, अपॉर्चुनिटी जो मिलने वाली है वो मुझे ग्रैब करनी है, ये मेरा हमेशा से फोकस रहा था। तो ड्यूरिंग दी चाइल्डहुड, मतलब मैं ऑब्वियसली लाइक आई यूज टू लाइक बी इन करिकुलम एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिव रहती थी। वेदर इज़ लाइक कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ हो, वेदर इज़ रंगोली कॉम्पिटिशन, वेदर इज़ डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, एनी ऑफ द कॉम्पिटिशन। बट जब करियर का जब हम 12th पास आउट हो जाते हैं, कॉलेज हमें जाना रहता है, तो वो एक रहता है कि यार एग्जैक्टली व्हाट करियर, आप लोगों के भी मन में क्वेश्चंस होते होंगे कि यार एग्जैक्टली हम करियर परस्यू एग्जैक्टली करना क्या है, हमें क्या डिग्री हासिल करना, और एट द एंड हमें वो गोल क्या लेना है। सो एक सेफ गोल जो सभी को दिखता है कि यार नहीं इंजीनियर बनना चाहिए, तो मैंने भी चलो ठीक है पढ़ने में अच्छे है तो ठीक है इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो इंजीनियरिंग किया। I was like luckily placed in 2 companies, TCS, CSC.
बट वो जो मन में एक वो था, जो मेरा आर्ट के प्रति एक झुकाव था शुरू से। यस क्योंकि जैसा हिमांशु का भी, मतलब हम दोनों का कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट सिमिलर था, पर आई थिंक वो कहीं जाके कनेक्ट हुआ। तो वो वाला जो कीड़ा मुझमें भी था कि यार जो ये एड्स बनते हैं, जब लाइक मिकी माउस और ये सब जब आए थे उस समय पे, तो वो आपको अगर याद होगा तो वो हैंड ड्रॉन काइंड है। इट्स नॉट लाइक वेरी कलरफुल, बट वो उस तरीके से पिक्चराइजेशन होता था। और फिर वो धीरे 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 चीजें अपग्रेड होती चली गई। तो मुझे ये लगता था कि यार हु इज दैट पर्सन बिहाइंड दैट, जो छोटे छोटे सेकेंड्स में ये कंसेप्ट को डिजाइन करता है। तो हु इज दैट पर्सन, मतलब मेरा हमेशा ये रहता था कि यार मार्केटिंग में अगर किसी भी ब्रांड को रिप्रेजेंट करना है तो दे हैव लाइक ओनली 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, बहुत कम सेकेंड्स है। और अगर अभी हम बैठे हुए हैं और सिर्फ ये बोले कि हाँ 20 सेकेंड्स में आ रहा हो या 1 मिनट में आ रहा हो, तो पता भी नहीं चलता है यार वो कब निकल गया है। बट जब हम उस कंसेप्ट को देखने बैठते हैं तब हमें पूरी स्टोरी यहाँ पे रियलाइज हो जाती है। तो मुझे बहुत अंदर से वो इंटरेस्ट रहता था कि वो दिमाग क्या चलाते होंगे कि वो इतना कंसेप्ट उसको कंसेप्चुलाइज कर लेते हैं कि यार एक प्रोडक्ट या एक ब्रांड को, लाइक फेविकोल की एड मुझे काफी फैसिनेटिंग लगी थी कि यार व्हाट एग्जैक्टली यार क्या दिमाग चला रही है। तो मुझे लगा कि यार शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मतलब कि 9 to 5 मैं कर तो रही हूँ, ठीक है चल रहा है, मैं फैमिली से दूर हूँ, इंदौर सिटी से दूर हूँ। मैं कभी इस समय पे हम लोग सोच रहे थे कि एग्जैक्टली यार क्या होना चाहिए जिससे मैं अपनी सिटी में रह के कुछ कर पाऊँ। तभी मेरे पास हिमांशु को कॉल आता है कि यार मैंने ये आइडिया ढूंढ लिया, अपन ये चीज़ कर सकते हैं। और मेरा इंटरेस्ट, मतलब वो जो कहीं दब गया था वो वापस से जाग उठा कि नहीं ओके। तो एक ही कॉल में लाइक आई सेड यस, और फिर हम लोग, मतलब मैं यहाँ पे आ गई। ऑब्वियसली मुझे बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा और बॉन्ड का अमाउंट भी वहाँ पे मेरे को सबमिट करना पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एमएनसीज में जाते हो तो दे हैव अ पर्टिकुलर बॉन्ड। तो ये रिस्क मैंने लिया क्योंकि मुझे अपना जो अंदर का जो कीड़ा जगा हुआ था एनिमेशन और क्रिएटिविटी के प्रति, वो मुझे अपना पूरा करना था। बिकॉज दिस इज व्हाट आई थिंक कि यही जो चीज़ है जो मुझे शायद लाइफ में करनी थी। देन हमने मोशन जिलिटी को बिल्ड करना स्टार्ट किया, और वो जो कंसेप्ट्स थे कि यार किसी ब्रांड को 30 सेकेंड 1 मिनट या इस तरीके से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो उस वे में मैं चली गई। और उस रास्ते को पकड़ते 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 मतलब मुझे HDFC लाइफ के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ पे हमने लाइक बहुत सारे कंसेप्ट उनके लिए डिज़ाइन करे। लाइक फॉर एग्जांपल उनकी पूरी जर्नी विद RPL, लाइक व्हाट आर द माइलस्टोन्स, तो उसको हम लोगों ने कंसेप्चुलाइज करा कि कैसे हम RPL विद HDFC लाइफ हम कैसे उसको बता सकते हैं। वी प्लान्ड अ फुल कंसेप्ट जहाँ पे अगर आप देखते हो तो जब आप ट्रैकिंग पे जाते हो तो यू हैव लाइक आपके पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप रुकते हैं, फिर वो एनवायरनमेंट बहुत अजीब रहता है। अजीब RPL और HDFC लाइफ के साथ जुड़ाव रखते हैं, उनको क्या क्या स्ट्रगल्स आए, क्या पेन पॉइंट्स आए। दैट वीडियो इज ऑन अवर यूट्यूब चैनल, इफ एनीबडी वांट्स टू चेक आउट HDFC लाइफ का वीडियो है विद RPL मोशन जिलिटी का यूट्यूब चैनल। तो दिस पर्टिकुलर थिंग जो कि मुझे बचपन से ही थी वो कहीं जागी, तो वो एक रहता है कि या तो आपका बचपन का चीज़ जो है, बचपन की चीज़ जो है वो शायद आपकी ट्रिगर कर जाए। तो यही मेरी जर्नी रही है कि मुझे वहीं से वो चीज़ का आइडिया लगा कि यार नहीं, दिस इज समथिंग मैं जो करना चाहती थी ये वही है, और मैंने जस्ट क्विकली वो डिसीजन लिया और मैं यहाँ भी बैठे हुए हैं। सुरभि, आपका पहला प्यार क्या रहा है? भारत की बेटी या इको बेटी? या हाली। हाँ, या हाली। Yes. So, सबसे पहले when you are talking about love, तो यहाँ जो बच्चे बैठे हैं पहले उनको लव की डेफिनेशन दो। को लव एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। अब जैसे वो हाली कह रही है, हाले आई थिंक wasn't my love. I was attracted to the Harley. It was not a long-term commitment that I could keep. लव वो होता है जिसके लिए आप अपनी जिंदगी देना चाहते हैं, जिसके लिए आप कमिटेड हो, जिसके लिए आप रोज सुबह उठेंगे और जिसके साथ अनकंफर्टेबल होकर भी आप कंफर्टेबल फील करेंगे, एंड दैट इज योर बिजनेस।
And when I say eco bay, उसके अंदर आंसर है eco friendly before anything else. So eco bay is my bay, and of course the Gen Zs understand what bay is. तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि first of all, don't timeline your life. I'm not going to talk about my life because if I start talking about what happened and how I got here, I think nobody else will get a chance to speak. So it's a long story. So what I'm trying to tell you here is don't timeline your life and do not stick to a decision because you took it. एक ये होता है ना कि यार अब हमने इसको वोट दे दिया तो यही हमारा नेता है और यही अच्छा करेगा. Not necessary. अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है तो get out of it. Try and do something new. Experiment. Because if you can afford it, then you should. And sometimes you can't even afford it and you do it. So my enterprise is going to be 1 year old on 26th February. And I will tell you very honestly, प्रशांत मेरा सबसे पहला प्यार है कंफर्ट. और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को कोई ऑर्डर दे तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती. So I was also like her in the corporate sector. आपने sorry to cut you short, थोड़ा लाइटर नोट पे कंफर्ट के बीच में पॉज इतना था मैं डर गया. मैंने कहा प्रशांत मेरा पहला प्यार है. मेरे को पता ही नहीं था. और वाइफ ने भी You will talk later. No. So comfort, basically I was in the corporate sector just like her, and it might sound a little feminist that people say, but I say it's equalist. It's never going to be as easy for a woman as it is going to be for a man. The men will say, no, you guys get it easy because you look good and men come and talk to you. You don't know they're just talking to our face. They're not even looking what is in there, right? So it happens with us. And girls, this is a fact. So it's not going to be easy for a woman, when it comes to, and even the fact that we have to balance everything. Like Indra Nui telling कि वो जब वो CEO बन गई थी पेप्सी के और घर आई उसकी मम्मा बोलती okay go get milk. She was not even excited. She didn't even मतलब congratulations तो छोड़ो उसको consolation भी नहीं मिला. So for me, I was in the corporate sector, and because we were a very small family, and when my daughter was born, I had to quit my job. So I started consulting. So बोलना आता है तो training consultant मैं बन गई थी. But for many years I did that, and then eventually my husband's business, he is into stone, and the percentage of earning वो जो business ना 10 पैसा 20 पैसा का business बन गया. So he was very upset कि यार मेरा business में तो कोई we're not making money, we have a turnover, we're not making money. So I said okay, but consulting में क्या होता है आपको जब job मिलता है तब मिलता है, otherwise आप वेले हो. So मैं हाले लाइट करती थी. I said I have a business idea, and very honestly in the beginning he was not convinced. वो husband ही क्या अपनी बीवी की बात नहीं निकालता. So he was not convinced. He's like नहीं ये तो what are you saying ये क्या है and all. And who's going to fund you? And very honestly, I had no money. और हार्ले मैं चला नहीं रही थी कुछ टाइम से. I said I will sell my Harley and I will bootstrap this business. So I sold my Harley for 3,25,000 rupees. And जो मैंने एक eco-friendly business का सोचा था, मैंने छोटी चीजें सोची थी कि हम टूथपेस्ट टैबलेट्स और बैम्बू टूथब्रश, टंग क्लीनर और ऐसी किट्स वगैरह छोटी चीजें करेंगे. उसमें मेरे को वही रियलाइज हुआ कि उसमें भी मार्जिन नहीं है. जो मेरा हस्बैंड जिस बात के लिए रो रहा है. Then I'm like, no. I was already running a foundation and I'm very passionate about women. I'm like, we should empower women and underprivileged. That's when I thought that we should go for eco-friendly handicrafts. So just for a plug-in that this sari has come from my store. So, handloom does not create as much pollution as factory production. So we started creating the whole story around how eco-friendly products can be used in your daily life. Like अभी भी आप देखेंगे तो hemp और linen जो है उनके ऊपर इतना taxation और इतना ज़्यादा expensive है वो product. अगर उसको
गवर्नमेंट रिलैक्स कर देती है क्योंकि कॉटन बनाना ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है। वो सब चीज़ें लेकर भी अभी बहुत सारे फाइट्स हैं फॉर इको फ्रेंडली एंटरप्रेन्योर्स। ऑल्सो पीपल डू नॉट वांट टू पे एक्स्ट्रा। हो रहा होगा, हम क्या करें, हम तो फास्ट फैशन ही लेंगे, हम तो ज़ूडियो ही जाएंगे, 700 रुपये में हमें शर्ट मिलता है, हम आपका 1200 रुपये का शर्ट क्यों लें? दैट चैलेंज इज स्टिल देयर, बट 1 year डाउन द लाइन आई एम टेलिंग यू विद दैट 3.5 लाख रुपीस मैं यहाँ तक आ गई हूँ और मुझे पता है मैं आगे जाऊंगी। जी आपका पहला प्यार के बारे में हम जानना चाहेंगे। पहला प्यार थोड़ा सा आप आपके बिजनेस के बारे में बताइएगा। नहीं तो पहला प्यार है, हाँ वो क्योंकि पहला प्यार बोलती थी थोड़ा शायद। तो पहले बिजनेस बता देता हूँ, फिर प्यार के बारे में बात करते हैं। सो हम लोग का D2C ब्रांड है इन द नेम ऑफ डीप रूट्स। हम लोग डेयरी फार्मिंग में है एंड हम लोग दूध के प्रोडक्ट्स एंड सम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जो हम मार्केट में दे रहे हैं। सो एंड वी आर नॉट लाइक जो मार्केट में नॉर्मली पैकेज मिल्क होता है मोस्टली कलेक्टेड होता है, अलग अलग फार्मर से दूध कलेक्ट होता है, देन इट गोज टू द प्रोसेसिंग हाउस एंड देन फ्रॉम वहाँ से प्रोसेस होता है एंड देन इट सप्लाई टू द कंज्यूमर्स। हमारा कंसेप्ट थोड़ा अलग है, हमारा सब कुछ इन हाउस है। हमारी खुद की गाय है, दे आर ऑल गिर काउस ज़ेबू ब्रीड जो A2 मिल्क प्रोड्यूस करती है। देन इन हाउस हमारा पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, द ग्रीन पाउडर वी प्रोड्यूस इन हाउस। सो वी हैव इन हाउस पाउडर, वी हैव इन हाउस काउस। कॉन्सेंट्रेट जो एक और पार्ट होता है जो गायों को खिलाना होता है आपको दूध प्रोड्यूस करने के लिए, अगेन दैट इज इन हाउस। वी आर नॉट प्रोक्योरिंग कॉन्सेंट्रेट या पशु आहार बाहर से नहीं आता है, वी प्रोड्यूस इट, वी डेफिनेटली वी प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड, बट हमारा खुद का कॉम्पोजिशन है, हम खुद तैयार करते हैं उसे और वो गायों को हम लोग फीड करते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। सो वी आर प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड वी आर प्रोवाइडिंग दैट मिल्क टू द कंज्यूमर्स इन इंदौर। एंड अपार्ट फ्रॉम मिल्क कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जो हम लोग कर रहे हैं। एंड जो मेजर डिफ्रेंसिएशन है, अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो आज भी इंडिया में प्योर दूध मिल गया तो भगवान मिल गया, उसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए। तो हम एडल्ट्रेशन इतना है कि हम प्योरिटी से ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं। सो हम उससे 2 स्टेप आगे हैं। प्योर तो है ही, उसके साथ इट हैज़ टू बी हेल्दी मिल्क एंड इट हैज़ टू बी न्यूट्रिशियस मिल्क। अगर हाइजीनिक मिल्किंग कंडीशंस नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से गायों को नहीं रख रहे हो तो आप कभी हेल्दी मिल्क नहीं मिलेगा। अगर गाय ही हेल्दी नहीं है तो आपको जो भले कितना भी प्योर दूध हो वो हेल्दी नहीं हो सकता कंज्यूम करने के लिए। एंड जब बात करते हैं न्यूट्रिशियस मिल्क की, आप जैसा खिलाएंगे वैसा ही तो दूध मिलेगा। सो जब बात करते हैं न्यूट्रिशन, अगेन भले ही प्योर है, अगर गाय को ढंग से फीड नहीं मिला है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फीड उसको नहीं मिला है, तो आपको जो दूध मिलेगा वो भी न्यूट्रिशियस नहीं होने वाला है। तो दूध कंज्यूम किया नहीं किया डजंट मेक एनी सेंस। फायदा मिले ना मिले, हो सकता है नुकसान मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ वी पिच्ड कि इट्स नॉट जस्ट प्योर मिल्क, वी आर ऑफरिंग हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस मिल्क अलॉन्ग विद प्योर मिल्क। इस तरीके से दूध की शुरुआत हुई। देन वी हैव वेरियस अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे हम लोग दूध है हमारे पास, जो घी हम लोग बनाते हैं, अगेन इट इज़ अ कंप्लीट ट्रेडिशनल मेथड जिससे घी बनता है। सो इट इज़ गाय का दूध को जमा के दही, दही को मथ के मक्खन और मक्खन से घी। सो दैट इज़ हाउ वी आर मेकिंग घी। तो वो घी हमारा प्रोडक्ट है, बट ऑब्वियसली उसके बीच में 2 बाय प्रोडक्ट हो गए, बटर मिल्क छाछ और मक्खन, वो हमारे पास है। उसके अलावा फिर हमने स्वीट्स बनाना स्टार्ट किया इसी दूध से, बिकॉज वंस अ मार्केट इज सेट जो आपको क्वालिटी के लिए पे कर रहे हैं वो अदर प्रोडक्ट्स भी ले लेंगे। सो वी स्टार्टेड विद पनीर एंड वी आर डूइंग रसगुल्ला, रबड़ी, देन वी आर डूइंग लड्डूज, न्यूट्रिटिव लड्डूज। ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ बिजनेस। तो ये तो था डीप रूट्स की बिजनेस स्टोरी। अब बात करते हैं प्यार की, तो प्रशांत भाई का टॉपिक है। सो एक एनालॉजी याद आ गई, तो आपको ना शायराना हो गया, तो शायराना नहीं था वो, बेसिकली एक एनालॉजी याद आया। प्यार में भी नॉर्मली यही होता है ना, फैमिली बोल रही है कि ऐसा करना है, हम बोलते नहीं हमको तो वैसा करना है, राइट? ये नॉर्मल होता है। फैमिली के साथ कहीं जाना है, नहीं नहीं अभी तो मेरा प्लान उधर का है, आप लोग जाओ, मैं तो कुछ कॉलेज की क्लास है, कुछ भी है, बोल के निकल लेने का है, वैसा वाला है। सेम गोज विद बिजनेस। आज एंड खास करके हमारे साथ ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है जो 365 डेज है एंड दोनों टाइम काम है आपके पास, दोनों टाइम मिल्किंग हो रहा है, तो इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। एंड देन वी आर नॉट डीलिंग विद मशीनरीज, वी आर डीलिंग विद लाइफ स्टॉक। बीमार होगा, कभी काल्विंग का डेट है तो बच्चा होने वाला है, एंड गायों के साथ भी ऐसा होता है, आपको ड्यू टाइम आपको समझ में आने लगता है कि नाउ इट्स काल्विंग टाइम। 2 घंटे पहले समझ में आने लगता है, लेकिन 2 घंटा हो गया लेकिन अभी बच्चा तो बाहर आया नहीं है। सो अगेन इट्स एन इशू। अब वो रात में होगा, दिन में होगा, वो आपके हाथ में नहीं होता है, इट्स नेचुरल, नहीं? आपको बिजनेस की तरफ जाना पड़ता है, इट्स लाइक फैमिली छोड़ के ना प्यार की तरफ भागना पड़ता है। सो बिजनेस इज दैट वे।
सो बहुत अच्छा एनालॉजी है, पहला प्यार है, उसको सोच के ही मुझे वो लग रहा था, तो वही चीज़ें थी। जैसे आपने बोला ना कि एक तरफ प्यार है, एक तरफ बिजनेस है, तो मुझे बिजनेस की तरफ जाना है, घर वाले बोल रहे हैं इधर जाओ, तो इस पर एक बहुत जबरदस्त लाइन है कि इश्क अधूरा रहा तो क्या हुआ, बर्बाद हम पूरे हुए। स्टार्टअप जो है वो कहने के इंसिडेंट्स होता है। So coming back to your experience, you have varied experiences, you've done multiple things. So what exactly motivates you and what's your first love that drives you to do multiple things? ये जो आज पूरी टीम बैठी है ना, मैं गुजरा कल हूँ, ये आज है, ये कल है। And another is, आप देखो 3 men and 3 women, such an equal power balance. मेरे बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। इंदौर आया हूँ, आई एम अ बिजनेस प्रोफेशनल। मैं ये कह सकता हूँ कि लोग सपने जो देखते हैं उनको साकार करने का, हर एक आदमी खुद का बिजनेस नहीं शुरू कर सकता, कुछ लोग को उन्हें बनाना भी पड़ता है, बढ़ाना भी पड़ता है, तो मैं उनमें से हूँ। थॉट्स को, विजन को, रोड मैप को कैसे प्लान करना, कैसे एक्सपेंड करना, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, कैसे बिल्ड किया जाए। सो मैंने आई स्टार्टेड विद सेलिंग फर्टिलाइजर्स, डेमो प्लॉट्स करते थे जब किसान फर्टिलाइजर नहीं लगाता था। फिर मैं पाइप्स में आया, फिर मैं टेक्सटाइल, आई वाज हेड ऑफ बिलवाड़ा शूटिंग्स। फिर मैं रियल एस्टेट में गया, आई वाज पार्ट ऑफ हैवेल्स ग्रुप, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए जानते हैं। एंड देन आई वाज विद सुप्रीम इंडस्ट्रीज, अगेन बिल्डिंग प्रोडक्ट। और फिर आप जिस प्रोडक्ट पे बैठे हैं, प्लाईवुड कह लें या MDF कह लें, मैं ग्रीन प्लाई का CEO रह चुका हूँ। सबसे 2-3 चीज़ें इंटरेस्टिंग है। आई मीन हम बात कर रहे हैं कि पैशन एक एक्चुअली जो एक एबिलिटी होती है, जो सबने अपने अपने तरीके से बोली कि कौन सी चीज़ में मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। ये जितना जल्दी समझ में आता है, नेचुरली बहुत टाइम लगता है, बहुत ट्रायल्स होते हैं, बहुत ठोकरें खाते हैं, पर जिस दिन ये समझ में आता है उस दिन आपके अंदर पीस आ जाती है कि मुझे पता है अब क्या करना है। जैसे वो पीस आती है, आपकी फायर डबल हो जाती है, क्योंकि आप खुद से नहीं लड़ रहे हो, अब आपको पता है कि मेरे को करना क्या है, राइट। सो मेरी पूरी स्कूलिंग, आई एम 1971 बॉर्न, इसलिए मैंने बोला आपको मैं गुजरा हुआ कल। मेरी पूरी स्कूलिंग और कॉलेज बिहार और यूपी से हुआ है। आप इमेजिन करो 1970s 80s में जब न्यूज़पेपर भी सुबह 11 बजे आया करता था, और अगर हमें इंग्लिश का न्यूज़पेपर चाहिए तो वो अगले दिन आता था, एग्जैक्टली, राइट। तो उस जमाने में हम पढ़ते थे, 10th में था मैं, छोटे से स्कूल में पढ़ते थे। एक मेरे फादर शुगर फैक्ट्री में काम करते थे, वो शुगर फैक्ट्री छोटी जगहों में ही होती थी। एक इच्छा हुई थी कि बहुत सारे बच्चों का 26 जनवरी को एक प्रोग्राम होना चाहिए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर कि कैसे, जैसे इन्होंने बताया, आपने बताया कि कुछ लोगों ने चॉइस अपने बिजनेस को लिया, कुछ ने किसी वजह से, किसी सर्कमस्टांसेस से वो उस बिजनेस में आए, राइट। तो 10th में हमारी इच्छा हुई कि हमको एक बहुत बड़ा स्कूलों का 26 जनवरी का एक स्पोर्ट्स डे मनाना चाहिए। आप इमेजिन करो 5000 की आबादी वाला गांव, और उस करीब 150 किलोमीटर में सिर्फ एक जगह ऐसी थी, एक कॉलेज था जिसमें स्पोर्ट्स ग्राउंड था, प्रॉपर ट्रैक था। एंड हम 3-4 दोस्त हमारे पेरेंट्स के पास गए कि हम ऐसा बड़ा कंपटीशन करवाना चाहते हैं। बोले तुम्हें कंपटीशन वर्ड की स्पेलिंग भी लिखने को बोलेंगे, मुझे याद है, तो तुम चारों जने लिख भी नहीं पाओगे, राइट। हमारे पास 3 महीने का टाइम था। हमने जो भी किया, हम, आई मीन इट इज स्टिल इन द पेपर्स। अगर आप 1985 के न्यूज़पेपर में जाएंगे, बिहार में सर्चलाइट टाइम्स होता था उस समय, जो बाद में हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, उसमें आप जाएंगे लाइब्रेरी में तो आपको फोटो तो सब मिलेगा। हमने 180 स्कूलों को इन्वाइट किया। नाउ 180 स्कूल वाज मोर देन 500 किलोमीटर्स। हमारे पास कोई फंड नहीं था। किसी स्कूल को बोला कि आपका फ्लैग लगेगा, किसी को बोला कोई आपका वाला तरीका, किसी को बोला आपको चीफ गेस्ट बनाएंगे, किसी को बोला कि जो टी-शर्ट्स हैं उन पे आपका नाम लिखा रहेगा। एक जना जूट बैग बनाता था, बोरियां बनाता था, उसको बोला एक बोरी कंपटीशन कराएंगे, वो आपके यहाँ की होंगी।
ये सारे दिमाग हम 4 बच्चों के थे, हम 10th में थे चारों, राइट। सो कैसे किया कि स्टोरी बहुत है, एक्चुअली सबने शेयर करी है, बट या जो मैंने आपको भी बताया कि मैं वो हूँ जो चीज़ों को साकार करता हूँ। आई एम समवन, अगर आपने बोला कि ये कर, मेरे बारे में बहुत इनफेमस है जब तक मैं नौकरी करता था 2 साल पहले तक, कि सर अगर एमडी के केबिन से निकले कुछ नया प्रॉब्लम लेके आएंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोल के आता था हो जाएगा, कुछ भी हो, प्रोडक्शन हो, प्लानिंग हो, नया प्लांट लगाना हो, यू नो। सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने 2013 के पहले 1 साल में कभी भी 500 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट नहीं किए थे। हम 1 साल में 800 करोड़ के कराते थे। कॉन्सेप्ट ये था हो जाएगा, कैसे करोगे सर, 2 घंटे का टाइम दीजिए। सो वन ओके नाउ वन इज की एरोगेंस है यार, कुछ भी बोलो कर लेंगे, वो नहीं हो जाएगा। कम्स विद अ कॉन्फिडेंस कि मुझे पता है कि मुझे किसको पकड़ना है इस काम के लिए, और ये नहीं पता तो ये तो पता है कि कौन है जो मुझे ये आइडिया दे सकता है कि ये काम करना कैसे है। सो फर्स्ट इज जो इस पैनल में है, स्पेशली द लेडीज, यू नो, मैन के लिए अभी भी रिलेटिवली इजी है बिना हिचक के लोगों से पूछना, लेडीज। सो सबसे पहले ये कि मुझे अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आई मस्ट हैव समवन इन फैमिली और सर्कल जिससे जाके मैं ये बोल सकूं कि यार ये अटक गए। इन चीजों में दोस्त जनरली काम नहीं आएंगे। दोस्त हम उम्र होते हैं, उनका एक्सपोजर भी लिमिटेड होता है। मैं डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसी सर्कल में आ रहा है, तो वो सर्कल शायद उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता, शायद नहीं दे सकता, है ना। या तो खुद के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि कुछ भी होगा हम निकाल लेंगे। जनरली ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं इस पूरे पैनल जैसे, कि खुद ही कर लिया था। सो ये हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि यार मेरा विचार कोई स्टूपिड बोल देगा, किसके पास जाऊं, कैसे पूछूं, क्या करें, यू नो। मैं आप में से कुछ लोगों को वी हैव टाइम, जब तक की वोटिंग नहीं होने में प्रोसेस वो फ्लो में जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया आज से 10 साल पहले कैंपेन कराता था, लीड इंडिया कैंपेन, यू नो, इट वाज अ नेशनल कैंपेन, जिसमें अल्टीमेटली उस कैंपेन का जो विनर था वो थॉट ये था कि ही शुड बी पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंडिया की पॉलिसी मेकिंग में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। 32,000 लोगों का कंपटीशन होता था, उसका सेमीफाइनल 8 लोगों में से 2 फाइनलिस्ट चुने गए थे। वो सेमीफाइनल दिल्ली IIT ऑडिटोरियम में हुआ था 2009 में। उसके जजेस अनाउंस हो गए थे कि एयर चीफ मार्शल, मिस वर्ल्ड, सचिन पायलट एंड डायरेक्टर ऑफ IIT 2 महीने पहले हो गए थे। आई वॉज वर्किंग इन दिल्ली। मैंने कहा यार मैं जज बनना चाहता हूँ इस कॉम्पिटिशन का। विनीत जैन इज द ओनर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट। मैं 45 दिन तक उनके ऑफिस के बाहर खड़ा रहा, रोज जाता था सुबह शाम कि ये बंदा मुझे मेरी सैलरी 5 लाख रुपए महीने थी। सो आई वाज, ऐसा नहीं था कि आई वाज नोबडी, आई हैड लॉट ऑफ प्राइड, ईगो, एरोगेंस। 2 गाड़ियां लग के चलता था दिल्ली में। मैं पैसे की बात नहीं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू कि अगर मेरे को करना है तो शर्म नहीं थी। एंड देन आई वाज पार्ट ऑफ दैट पैनल। मैं उस पैनल का मतलब ही हैड नो आंसर कि यार मैं इसको क्यों नहीं बना। मैंने कहा आपको फायर चाहिए, पैशन चाहिए ना, राइट। सो अनदर थिंग इज कि आप क्वालिफाइड होते हो, लेकिन आपको नोटिस कैसे किया जाए, वो नोटिस करने के लिए आपको हिचक छोड़नी पड़ती है। जो इस पैनल में सबने ऑलमोस्ट यही बात बोली कि हमको हमारा काम करना था। सो डर ये नहीं था कि कोई क्या बोलेगा, सोच ये थी कि करना कैसे, जनरली, राइट। सो हमेशा आउटकम को सोचिए कि मेरा आउटकम क्या होना चाहिए, 1। सेकंड, कभी अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज मत होने दीजिए। नाउ वैल्यू इज अ बहुत डाइवर्स टर्म है। देखिए सबने जर्नी बताई है, सबकी रियल लाइफ एग्जांपल है, मेरे पास भी है, बट मैं कुछ दूसरे पॉइंट्स को टच कर रहा हूँ, राइट। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि फैमिली में किसी को ये ना लगे कि ये क्या कर दिया, है ना। वो आउटडेटेड हो सकता है, उनकी समझ कम हो सकती है, लेकिन उनका अपनापन, उनका मोहब्बत और आपके लिए उनके मन में इज्जत बहुत होती है। वो इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। कुछ मत करिए तो भी ठीक है, गलत मत करिए। इंटीग्रिटी
सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, इनके मीनिंग शायद आप लोगों को अभी नहीं समझ में आए। पर जितनी बार आप ये, हम लोगों के समय में बहुत कम लोग समझाते थे। आपके समय का एडवांटेज है, आपको लोग समझाने के लिए मिलते हैं, राइट? हम थोड़ी देर पहले डाइनिंग रूम में बात कर रहे थे कि कॉपी एंड पेस्ट इज कैन नॉट बी द सोल्यूशन। कॉपी एंड पेस्ट के लिए भी एप्लीकेशन होना चाहिए कि क्या कॉपी करना है, क्या एडिट करना है, क्या डिलीट करना है। सो हो सकता है कि आई मीन ओके, सो एक और आपको मैं किस्सा बताता हूँ। मैं आई कम फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली, पढ़े लिखे लोगों की फैमिली। तो ऐसा होता था कि इसको भी आगे बढ़ना है, ग्रेजुएशन कर लिया, बिहार से निकल गए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके, 3 साल का कोर्स 5 साल में किया। स्ट्राइक बहुत होती थी कॉलेजेस में। सो फिर फादर ने बोला कि तू सीए कर नहीं सकता, इंजीनियरिंग कर नहीं सकता, एमबीए कर ले। अरे मैंने कहा पापा सब अपने घर में सब बड़े बड़े ऑफिसेस में बैठते हैं, आप भी जानते ही होंगे, किसी को लगवा दो काम पे। इतना आसान नहीं था। 1993 में बॉम्बे में 2100 रुपये में मुझे नौकरी मिली। मेरा ऑफिस था, आपको एक आइडिया देता हूँ। कुछ साल पहले जो बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसमें एक होटल था ट्राइडेंट होटल, जो उस समय ओबेरॉय होता था नारीमन पॉइंट पे। उस होटल के ठीक पीछे एक बिल्डिंग है पार्लियामेंट हाउस के पहले, बख्तावर टावर्स। मेरा उसमें 13th फ्लोर में ऑफिस था। 2100 रुपये मिलते थे। मेरे फैमिली के बहुत लोग बॉम्बे रहते थे, लेकिन अब तो आप कमाने लग गए तो खुद रहेंगे। सो आप में से किसी को कल्याण के आगे शहाड़ एक जगह है, सेंचुरी रेवन का जहाँ टाउन है। सो ओके, मैं आपको बताता हूँ, शहाड़ यहाँ है, शहाड़ से और मेरा ऑफिस यहाँ था, स्ट्रेट लाइन। तो शहाड़ से हम कल्याण आते थे, एक शेयर टैक्सी ऑटो करके कल्याण से ट्रेन लेते थे। वो ट्रेन करीब 1.25 घंटे लगाती थी, हमें वीटी लाती थी। वीटी से शेयर टैक्सी या बस लेके हम नारीमन पॉइंट पहुंचते थे और वहां से करीब 1-1.25 किलोमीटर वॉक करते थे। सुबह 9:15 बजे ऑफिस पहुंचना होता था, सुबह 6:15 बजे घर से निकलते, है ना। दिन के खाना वहाँ पे एक नारीमन पॉइंट पे रेस्टोरेंट है स्टेटस, उसका ना बाहर जो वो स्टैंडिंग ईटिंग सेक्शन है, उस समय 10 रुपए में वेज बिरयानी मिलती थी विद अनलिमिटेड मूली का सैलेड एंड नारियल की चटनी। मैंने 6 महीने काम किया, मैंने 6 महीने सिर्फ वही खाया जितने दिन में ऑफिस किया, पैसे उतने होते थे। So if someone offers me rice, I don't eat rice now at all. 3 महीने में ये समझ में आया कि बॉस ये तो फंस गए अपन, अब घर वालों के पास जा नहीं सकते। मैंने बोला ना कि तेरे को बोला था, क्या करें। तो ऑफिस से कुछ लोन लिया 3,500-4 हज़ार का, और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बॉम्बे ताड़देव का उस समय बहुत फेमस होता था, जो MBA की तैयारी कराता था, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स लिया। अब हमारी डेली दिनचर्या ये थी, सुबह 6:15 हम घर से निकलते थे, मतलब 5-5:15 उठते थे और पहुंचते थे रात को 12:30-1 बजे, ऑल 6 डेज। क्योंकि लास्ट डे आप 9:30 बजे निकल रहे हो, फिर पहुंचते 11:30, 12, 12:30 हो जाएगा, तो पढ़ो कब। फॉर्चुनेटली ट्रेन में, चूंकि वो बॉम्बे में अभी भी एक सेट पैटर्न होता है कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन कहाँ बैठा है, लोकल ट्रेन थी। आधे रास्ते उसमें, चूंकि वो लॉन्गेस्ट रूट की एक सिंगल ट्रेन होती है, तो उसमें आधे रास्ते में मुलुंड में आके जो बैठे हैं वो चेंज कर लेते हैं। इट्स एन ऑटोमेटिक सिस्टम इन दैट रूट ओनली, इट्स कॉल्ड हार्बर रूट, मछुआरों वाला रूट बोला जाता है उसको, है ना। तो जितना खड़ा होता था मैं सो जाता था, जैसे ही बैठता था कॉपी किताब खोल लेता था। I got selected in Narsi Monji. I cleared my CAT. But मैंने नरसी मोहन जी से नहीं किया। I thought कि नहीं यार, यहाँ खर्चा ज़्यादा लगेगा। मेरे को पुणे यूनिवर्सिटी भी मिल गया था, मैं सिंधी चला गया, सिंधी से करूँगा। अब एक और ट्राजेडी देखिए, उसके पहले मुझे 2 बार, हम बिहार में रहते थे, तो एक बार पिलानी भेजे गया। पिलानी एक बहुत अच्छी एजुकेशनल जगह मानी जाती है, वनस्थली एंड पिलानी ये होते थे थोड़ा। लेकिन अब एटीट्यूड, जैसे एटीट्यूड की बात आई ना कि सुन नहीं सकते किसी की, करना अपने मन की है, कंफर्ट। तो हम भाग गए, हम तो खुद के भाग आए। हमको 3.5 दिन लगे अपने घर तक पहुंचने में, बस ट्रेन चेंज करते करते बिना पैसे के हम घर आ गए। दैट वाज इन 7th क्लास।
It's a perfect example of persistence. अच्छा सर की इंटरेस्टिंग चीज में एक इंटरेस्टिंग चीज समझ के कि कंपटीशन की स्पेलिंग पता हो या नहीं पता हो, लेकिन कंपटीशन कैसे करना ये पता होना ज्यादा जरूरी है। MBA के लिए पैसे, देखिए मैं जो भी बता रहा हूँ सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं अपनी स्टोरी नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू लाइक अदर्स कि फोकस डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। कोई भी बोले अगर आप में बिलीफ है और ये है कि क्या होगा, फर्स्ट यही होगा ना जहां हूं, बिना किसी को तकलीफ और पहुंचाए अगर मैं अपना बर्स्ट अपने तक रख सकता हूं तो ट्राई करिए। तो सर प्यार में वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है? सो कमिंग बैक, सो एक होता है प्यार का एंगल हो गया, फिर कई में ऐसा भी होता है ना कि वाइफ से भी झगड़ा होता है, ब्रदर से झगड़ा होता है, हस्बैंड से झगड़ा होता है, झगड़े तो होंगे। प्यार में भी मतलब अपने स्टार्टअप के केस में भी कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुई होंगी कि यार ये कहीं गलत तो नहीं फंस गए। तो देयर वुड बी इंसिडेंसेस, तो वी वुड लव टू नो एक पॉइंट्स आपकी तरफ से कि वो क्या इंसिडेंट्स रहे आपकी लाइफ के, कि और वो शॉर्ट में रखेंगे अपन। जो पहला सेशन अपन ने रखा था इसलिए रखा था सो दैट एवरीबॉडी नोज अबाउट यू। नाउ वी वुड वांट टू हैव वन पॉइंट्स फ्रॉम ईच कि वो ऐसा कौन सा पॉइंट था जहां पे आपको ऐसा लगा कि यार कहीं हमने गलत पार्टनर तो नहीं चूज कर लिया। तो विल स्टार्ट फ्रॉम अंकित जी। वैसे पॉइंट की अगर बात करूं तो एक पॉइंट जब आपको ऐसा लगा कि अरे यार डिवोर्स ले लेना चाहिए। वैसे पॉइंट की बात करूं तो एक चीज था जब क्योंकि कभी खेती और गाय कभी पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है, तो और सब कुछ सीखना का एक वो था कि अगर करना है तो सीखना तो पड़ेगा। तो कितने लोग हैं ऐसे जो खेती से जुड़े हुए हैं? राइट, वेरी गुड। नहीं, खेती से जुड़ा है तो एग्रीकल्चर पढ़ नहीं रहे हो, खेती से जुड़ा मतलब जिन्होंने जाके खेत में काम किया हुआ है। काम किया हुआ है खेती में। मुझे जो सबसे डिफिकल्ट टास्क लगा वो था पानी देना खेतों में। और जब वो किया मतलब ना प्रेशर से पानी आता है, छोड़ना है यहाँ जाता वहाँ है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और वो भी रात में, मतलब क्योंकि वो तो कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास और करना था, और लेबर नहीं है तो आपको रियलाइजेशन नहीं होता है जिसके लिए आप कर रहे हो उनको, मतलब खास करके आपके कस्टम हो या कोई भी चीज़ हो। हम इतना एफर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को आपको नेचुरल वे में, न्यूट्रिटिव वे में पहुंचाने के लिए, और सामने से जवाब ये मिलता है आज तो दूध का कलर थोड़ा कम पीला है। क्या कम पीला भाई, उधर जान निकल चीजें हो जाती है, आपको लगता है यार क्या कर रहे हो। वो डायलॉग सबसे आखिरी में जो मारा ना मुझे बढ़िया लगा, अरे जान निकल गया आपको क्या लग रहा है। So what about you? So Prashant, this question actually doesn't apply to me because in real life also this is the second time I'm married. So of course I had the courage to leave what I didn't like, and I would still say that in life it is very important to know what you don't want. It is not very important to know what you want, because what you want to evolve होता है, but what you don't want कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी, you can't talk to me like this cannot happen, this is a rule. You know, like when I started speaking, I wanted कि कोई मेरा फोन पकड़ के मेरा अच्छा सा वीडियो बनाए. Why? I don't know when I'll get that video because जो दिखता है वो बिकता है. You know, so in startup life आपको documentation करना बहुत जरूरी है हर चीज का. And even you know किसी चीज को छोड़ना है. Like even when I was taking the divorce, I had to document it. My parents were like, why do you not want to live with this boy? So I had to tell them that these are the 10 reasons why I can't live with him. So even in a business, you got to know why you want to be there or why you do not want to be there. For my business, I'll tell you again, when you're making eco-friendly handmade products, the big challenge is you cannot do mass production. और लोगों का क्या होता है, मैडम हम 1000 पीस का ऑर्डर देंगे, प्राइस तो कम करो. मतलब भाई आप जब 1000 पीस का ऑर्डर दोगे तो उसके लिए 200 लोग काम करेंगे, हाथ बढ़ेंगे, काम कम नहीं हो रहा, कोई मशीन प्रोडक्शन नहीं है. तो एक वो चैलेंज है. दूसरा, अभी तक in this 1 year, I'll tell you, like Himanshu ji said, God has been so kind that you know, even he tells me, Prashant tells me so many times, so you should do some course on networking. So